हाय, कैसे हो आप लोग। मैं ईप्सा और हम हैं ईप्सा एजुकेशन चैनल पे, सब साइंस और कुछ मैथ्स। ठीक है, आज है हम केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड्स जो चैप्टर होता है उसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन हमारा टॉपिक चल रहा है। वी आर ऑलरेडी ऑन द सी एपिसोड ऑफ दिस स्पेसिफिक topic, alkane, alkene, alkyne. Today is a test kind of a thing. Not test, just some revision, mixed revision of the three types. इसमें हम बेसिकली क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे वो होगा फॉर्मूला, नेम, स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड. टाइप ऑफ बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दैट. ठीक है, सो ये मैंने क्वेश्चन सुना दिया, सब टाइप मतलब मिक्स्ड है. हियर वी हैव टू राइट द फॉर्मूला इफ रिक्वायर्ड. हियर वी हैव टू राइट द मतलब व्हाट इज इट, एन है, इन है, आइन है, व्हाट शुड आई राइट, टाइप and bond. Is it a single bond or a double bond or a triple bond? And here, oh, where do you write the name? Formula and name. Here we do the name also and formula also. And here we will do the structure. I hope I'm clear. एक एग्जाम्पल करेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूला और नेम. अब फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है. सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बिना काम नहीं चलता. ठीक है, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं. इज इट 2n NH6? Where should we do? We can do it here only. इसमें NH6 number of carbons is what? 6. And what is 2n? 2n will become 12. Now, is this 12 less than 12 or more than 12? This is less than 12. That means 10 becomes 2n minus 2. Right? Am I right? Now, the moment it is 2n minus 2, what does it become? It becomes an ion. Remember the formulas? 2n plus 2, 2n hat. So the moment it is 2n minus 2, this thing becomes an ion. So at least we write the surname. Okay. Now how many carbon atoms are there? Hex 6. So we'll just put hexine. So the complete name becomes hexine. The formula was already given to us. Okay. Now, what kind it is? Of course, we find out this is an alkyne. Alkyne means how many types of bonds? Like a triple bond. This is the kind of bond we will have in one of the parts. Now, how do I make the structure? I don't think we have practiced that much. So, this is the first time I'm probably doing it. Hexine. Okay, so first you do is first thing first, hex. Just put 6 carbon atoms in a row with a single bond in between. Just put, because it is hex, so you put 6 carbon atoms in a row. Okay.
Now it is an alkyne, it has to have a triple bond somewhere. It's simplest to put the triple bond here. Confusion सबसे कम हो जाता है. Okay. Now we're left with hydrogens. We should have 10 hydrogens, right? And valency of carbon is कितना? 4. तो सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. अभी इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं? 1 बॉन्ड है. टोटल कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की स्पेस है. तो हम पहले 3 हाइड्रोजन की स्पेस बॉन्ड बना के और ऐसे 3 हाइड्रोजन लिख देंगे. इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2. टोटल कितने चाहिए होते हैं? 4 बॉन्ड्स. सो इट विल नीड 2 हाइड्रोजन्स, एक ऊपर एक नीचे. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं से पहले बॉन्ड बना रही हूँ. हाइड्रोजन बाद में लिख दूंगी. ठीक है. दिस इज ऑलरेडी हैज 2 बॉन्ड्स. एक ये रहा 4 बनाने के लिए 2 more. It has already 2. 4 बनाने के लिए 2 more. This has how many? This has 4 bonds. एक यहाँ पे और 3 यहाँ. So it does not need any more hydrogens, any more bonds, क्योंकि उसके पास already 4 हैं. So you will not have any hydrogen here. इसके पास 3 bonds हैं, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है. 4 टोटल करते हैं. ना जहाँ आपने बनाया है बॉन्ड वहाँ आप हाइड्रोजन लिख दो. And just verify, is it 10 hydrogens or not? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See, so that becomes the structure of whatever the compound is. This is how you do. जितने कार्बन से पहले एक स्ट्रेट लाइन में बना दो. फिर जिस टाइप का कंपाउंड है एक कोने में बना दो उसको. डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, व्हाटएवर. देन काउंट 4 4 4 4 डैशेस ऑल अराउंड कार्बन. कितने बॉन्ड्स? 4 होने चाहिए. और जहाँ कम है वहाँ हाइड्रोजन्स लगाते जाओ. That's it. That's how simple it is to make the structure. Let's take the next. Okay, we'll skip this for a while. Let's do this. अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला तो साफ साफ दिख रहा है. 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है. सो दिस बिकम्स C2H2. Simple. The formula becomes C2H2. Now let's do the calculations. Number of carbon कितने? 2. 2 कार्बन से. Number of 2n कितना है? मतलब जिस 2n कितना हो गया? 4. अब हाइड्रोजन्स कितने हैं? 12 plus 2 या 2n minus 2. 2n is 4, so 2n minus 2 gives you 2, right? So this thing, hydrogens is 2n minus 2, where n is carbon. और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? एल्काइन का, राइट? तो हम यहाँ लिख देते हैं एल्काइन. एल्काइन मतलब इट शुड हैव ट्रिपल बॉन्ड्स. अब नेमिंग करते हैं. आयन तो हो गया. आयन तो लिख ही दो. 2n माइनस होती है, आयन लिख दो. अब कितने कार्बन आइटम्स हैं? 2 का क्या नाम होता है? eth. Remember? So the name is ethane. This is the type and this is the number of structures. Now let's. The structure is already drawn, तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है because they have already drawn the structure. Let's come to this. Hexane. Extract. N कितना है? 2. Right? Hex की वजह
एन, मतलब हमें यहाँ पे एल्केन तो पहले ही लिख लेना चाहिए। सरनेम एन है ना, और मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। हेक्सेन है तो हाइड्रोजन्स के कितने होते हैं? हाइड्रोजन्स एन्स में, एल्केन्स में कितने होते हैं? राइट, H2n+2। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन बिकम्स हेक्स, oh my god, this is 6, number of hydrogens is hex 6, so number of carbons is 6, number of hydrogen becomes 4, ठीक है। So now we have the formula C6H14, what will be the name? alkane तो है, नेम तो इन्होंने ही दिया हुआ है, जरूरत नहीं, the name is hexane। Now we have to draw the structure। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? हेक्स इन हेक्स, तो हम सीधे सीधे पहले 6 का बना, कुछ नहीं करेंगे, 3 4 5 6। अब एन है सिंगल बॉन्ड, लास्ट में एक बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्ड है तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। Now we want to complete 4 bonds, हर कार्बन एटम के should have 4 bonds। इसके पास अभी एक है, 2 3 4 पूरे हो गए, इसके पास अभी 2 हैं, 4 पूरे, 2 हैं 4 पूरे, इसके पास 2 हैं 4 पूरे, इसके पास 2 हैं 4 पूरे, इसके पास एक ही है, तो you will have to put 3 because it had only 1। अब बस सब जगह हाइड्रोजन लिख दो, जब आपने एम्प्टी छोड़ दिए थे बॉन्ड, वहाँ पे क्या आना है? वहाँ पे हाइड्रोजन आना है ना। फॉर्मूला क्या है? C6H14, तो Hp तो कहीं होने चाहिए ना। अब we just check कि 14 हाइड्रोजन है कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so everything is correct। C6H14 formula is correct, नेम एल्केन, एन यहाँ से सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला हो रहा, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, C9H18, लेट्स डू सम कैलकुलेशन। एन कितना है? एन अगर कार्बन पे लिखना तो एन हो गया 9, 2n कितना होता है? 9 to the 18, तो ये ऑलरेडी बराबर हो गया, हमें ना 2n करने की जरूरत पड़ी ना 2n माइनस करने की जरूरत पड़ी, राइट। सो व्हेन इट इज 2n, व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इट इज? इट इज alkene, remember from the previous videos, if it is 2n it is an alkene which has double bond। अब नाम कर लेते हैं, 9 कार्बन, 3 तो पहले फॉर्मूला तो इन्होंने दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला नहीं लिखना, नेमिंग करनी है। नाउ इट्स एन alkene, so it will end in ene, और how many carbon atoms? 9, so nonene। 9 का याद है? नॉन होता था, so this compound will be called nonene। And now the structure of it will be long, 9 carbon atoms, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and now I'm not explaining, I'm just completing 4 valencies for each। ओ इन के लिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे इन था ना, तो मैंने यहाँ पे डबल वैलेंसी 2 बॉन्ड बना दिए। इसके लिए हमें 3 पहले से हैं, तो मैंने एक ही हाइड्रोजन लगाया है, ठीक है।
Is this clear? This carbon already has 1 and इन के 2 3, तो इसको 4th कंप्लीट करने के लिए 1 लगा दिया. This has already 2 bonds, तो हमें सिर्फ 2 bonds चाहिए. Right? Now we quickly complete. इतना हाइड्रोजन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं H बार लिखा. H 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 H. Oh, इधर नहीं, sorry. This is supposed to be 18. Let's count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, it means 16, 17, 18. Did I look more? What is the problem? Oh, I need one extra here. 2, 3, 4. इसके वजह से 4. So you have 18 hydrogens. So everything looks complete. Now let's come here. Can we already see a double bond? We can see a double bond. Alkene लिख दे इसको. जब दिख ही रहा है double bond, structure ही दिया हुआ है, तो alkene लिख देते. Formula अगर calculation नहीं भी करे, तो formula क्या है? C4 H कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. And नाम क्या हो जाएगा? सरनेम तो इन होएगा. एल्कीन है क्योंकि, और कार्बन कितने? 4, तो फर्स्ट नेम हो जाएगा ब्यूट. तो फुल नेम बिकम्स ब्यूटीन. सिंपल. और इसमें एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होंगे. स्ट्रक्चर विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट. सिर्फ 4 कार्बन बनाना है. एंड में इन बनाना है, तो 2 ये बॉन्ड. देन वी कंप्लीट द वैलेंसीज. अब इसके पास ऑलरेडी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है इस वाले कार्बन के पास, तो सिर्फ 1 बॉन्ड. इसके पास 2 ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं ये वाले, तो इसके हम टोटल 4 कर देंगे. Let's count. There should be 8 hydrogens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C4H8 is an alkene with a double bond, and now pentyl. नाम से पता चलता है क्या है ये. एल्काइन है. एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. पेंट. पेंट से क्या पता चलता है? N is equal to 2. Oh, why am I stuck to 2? N is equal to 5. पेंट. आयन से क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन इज 2n minus 2. Remember, alkynes have what? 2n minus 2. 2 5s are 10. 10 minus 2. So hydrogens are 8. Carbons are 5 and hydrogens are 8. So the formula becomes C5H8. Okay. Name we don't know. Need to know. इन्होंने दिया हुआ. This we are filled. Now we need the structure. Pentyne. So 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5. And it is an ine. Ine means एक हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा. बना दिया. ओ, अब इनके 4 डंडे पूरे कर दो. ये 4 डंडे हो गए. इसके पास 2 पहले से ही थे. 4 पूरे हो गए.
4 पूरे हो गए। ओ इसको अब ध्यान से लिखेंगे, इसके पास एक ये रहा और 3 ये, इसको चाहिए ही नहीं, और 4 ऑलरेडी है, 1 + 3 4, इट डज नॉट नीड एनीथिंग। दिस हैज 3 सो इट विल नीड, डंडे पूरे होने के बाद, डंडे मतलब बॉन्डिंग, क्रूड नेम जो है बॉन्डिंग को डंडे, इसको चाहिए ही नहीं, और इसको लेट्स सी हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3 5 6 7 8। अब देखते हैं कितना चाहिए थे, 8। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन। कुछ इनमें ऐसे कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एनीथिंग एंड यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग थिंग्स। तो हमने फॉर्मूला लेके भी देख लिया, हमने नाम लेके भी देख लिया, हमने स्ट्रक्चर लेके भी देख लिया, हमने हर चीज ट्राई करके देख ली, एंड वी कैन फाइंड आउट अदर थिंग्स। उसमें से हम दूसरी चीजें वी कैन फाइंड द आंसर्स। एक चीज भी गिवन हो, अगर स्ट्रक्चर भी गिवन हो, तो वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन दिस। अगर नाम गिवन हो तो वी कैन फाइंड दूसरी थिंग्स। ठीक है, अब बचा व्हाट वी हैड लेफ्ट, मीथेन और मीथेन। ओके, सो एल्कीन लिख देते हैं क्विकली, ईन दिख रहा है ना, एल्कीन, ईन दिख रहा है, so it will be an alkene, right? ईन means it have a double bond. नाम हम पता है, now we need the formula. Okay, N कितना है, 1 कार्बन, मेथ एक, ईन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2n, that means 2. So the formula becomes CH2. ठीक है, अब let's make the structure. We need 1 carbon atom. Okay, 1 carbon atom, and we need a double bond. पर डबल बॉन्ड बनाएं किसके साथ, जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन में, वो होते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। यहाँ हमको बनाना है एक डबल बॉन्ड एल्कीन की वजह से, डबल बॉन्ड बिटवीन एक कार्बन और दूसरा कार्बन। पर यहाँ तो दूसरा कार्बन है ही नहीं, मिथ है, एक कार्बन एटम है। जब दूसरा कार्बन है ही नहीं, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे कैसे हम, कहाँ बना, हाइड्रोजन के साथ थोड़ा बनता डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनता है हमेशा 2 कार्बन्स के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड बनता है हमेशा 2 कार्बन्स के बीच में। सो व्हाट हैपेंस इज this compound is absolutely not possible. A compound named methane is not possible. ये एक पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि जो एल्कीन्स होते हैं उसमें 1 कार्बन वाला नहीं होता। एल्कीन में सबसे छोटा इथीन होता है, मीथेन कुछ नहीं होता, मिथाइन कुछ नहीं होता, मीथेन कुछ नहीं होता, मिथाइन कुछ नहीं होता। These 2 series they start with ethene और इथाइन। इथीन इथाइन इनके फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, इनके पास बेचारों के पास मीथेन भी नहीं होता, मिथाइन भी नहीं होता। समझ गए क्यों? क्योंकि दो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना, और 2 कार्बन होने के लिए जैसे ही वो 2 कार्बन होते हैं, जैसे ही उनका नाम बन जाता है इथीन और